Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 2 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solutions. So this particular set I have taken from previous year SimCats and the set is on arrangement and the set says, current president of the BCCI is meeting 5 former Indian cricketers to consult them on Indian cricket team. The 5 former players are Sachin, Sehwag, Ashish, Saurav and Yuvraj. Post-retirement, the 5 former players have settled in exactly one of the following 5 cities, namely Mumbai, Delhi, Kolkata, Chandigarh, and Goa, not necessarily in the same order. Each of the 5 players is an expert in different field with exactly one of the following 5 field: captaincy, fast bowling, batting, fielding, and spin bowling. Not necessarily in the same order. The following information is not. The former player who is an expert in spin bowling has not settled in Goa post his retirement. Yuvraj and Saurav are not expert of batting or spin bowling. Ashish is not an expert of captaincy or fielding. Sachin and Sehwag have not settled in Kolkata or Chandigarh post their retirement. Neither of them is an expert of fast bowling or fielding. Saurabh is not an expert of fielding. The former player who is an expert of captaincy has not settled in Chandigarh post his retirement. The former player who has settled in Kolkata post his retirement is not an expert on batting or spin bowling. Yuvraj and Saurabh have not settled in Goa or Kolkata post their retirement. Sehwag is not an expert on spin bowling. एक बार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. The city settled in post retirement as well as their expertise can be uniquely determined for how many of the 5 former players. ठीक है. Consider the following statement A and B. What best can be said about the statement? Who has settled in the Goa post his retirement? If Saurav has settled in Mumbai, if की बात हो रही तो probably ये पूरा क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ये भी अपने को दिख रहा है. If Saurav has settled in Mumbai post his retirement, then which city has Sachin settled in post retirement? Which of the following combination is definitely correct? ठीक है. एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स अरेंजमेंट का सेट 3 वेरिएबल पे चला है, जिसमें फर्स्ट वेरिएबल इज ऑब्वियसली द नेम ऑफ द प्लेयर्स, सेकंड वुड बी देयर एक्सपर्टीज एंड थर्ड वुड बी देयर सिटी इन विच दे हैव सेटल पोस्ट रिटायरमेंट. ठीक है. अब ये एकदम वैसा ही सेट है जो कि जनरली आपको दिखता है, ल्यूक्रेटिव सेट है. इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी खतरनाक है. खतरनाक ऐसे है कि यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन है 9 की 9 पॉइंट्स, वो सब नॉट नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है. ठीक है. मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा हो कि हाँ चलो मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर सकूँ. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए? टिक अनटिक वाले लॉजिक से आपको लगाना चाहिए. हमेशा वो अप्रोच आपकी बेटर होती है जब आपको ज़्यादा स्टेटमेंट नॉट के बारे में बोल रहा हो. तो आप क्या करिए, दोनों वेरिएबल को फिक्स करिए और दोनों वेरिएबल में जहाँ पे अनटिक है उसको मार्क करना शुरू करिए. यू विल ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू कंक्लूड कि अच्छा ये वाला पैरामीटर इन 4 का हट गया, एक आंसर तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा. अ सिमिलर अप्रोच आई हैव टेकन फॉर दिस सेट. मैंने क्या करा, एक ऐसा टेबल बना लिया एंड इस टेबल को मैं फिल करना शुरू कर दूंगा. ठीक है. लेट्स रीड दी स्टेटमेंट एंड लेट्स ट्राई टू फिल दी स्टेट. ये पूरा टेबल क्या लिखा हुआ है? द फॉर्मर प्लेयर हु इज एन एक्सपर्ट इन स्पिन बॉलिंग, यानी कि जो स्पिन बॉलिंग वाला है, हैज नॉट सेटल्ड इन गोवा, यानी कि ये गोवा में सेटल नहीं हुआ है. यानी कि ये गोवा में सेटल नहीं हुआ है. ठीक है. अगर ये गोवा में नहीं हुआ तो यानी कि बचे हुए बाकी जगह होना चाहिए. ठीक है. मैंने क्या करा ना, ये 5 बाई 5 मैट्रिक्स और साइड में मैं लिखने वाला हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो कि ये सिटीज के बारे में दिया. युवराज एंड सौरव आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ बैटिंग एंड स्पिन बॉलिंग. युवराज और सौरव दोनों ही बैटिंग और स्पिन बॉलिंग दोनों के वो एक्सपर्ट नहीं है. ठीक है. पॉइंट नंबर 1 नोटेड. पॉइंट नंबर 2 नोटेड. आशीष इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ कैप्टेंसी. आशीष जो है कैप्टेंसी का भी एक्सपर्ट नहीं है और फील्डिंग, और वो फील्डिंग का भी एक्सपर्ट नहीं है. ठीक है. पॉइंट नंबर 3 नोटेड. सचिन एंड सहवाग हैव नॉट सेटल्ड इन कोलकाता और चंडीगढ़. सचिन और सहवाग ऐसे हैं जो कि ना ही कोलकाता ना ही चंडीगढ़ में सेटल हुए हैं, यानी कि ये लोग बचे हुए 3 शहरों में से किसी शहर में सेटल हुए होंगे. नीदर ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग और फील्डिंग. दोनों ही फास्ट बॉलिंग और फील्डिंग एक्सपर्ट नहीं है. दोनों ही फास्ट बॉलिंग एक्सपर्ट नहीं है और फील्डिंग के भी एक्सपर्ट नहीं है. तो फील्डिंग का अभी तक पता है कि भाई ये तीनों खत्म हो गए, तो यहाँ में से कुछ हो सकता है. ठीक है. पॉइंट नंबर 4 नोटेड. सौरव इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑन फील्डिंग. सौरव जो है एक्सपर्ट नहीं है फील्डिंग के. तो देखो युवराज के लिए क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक्सपर्ट होने वाला है. अब यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था. आप इसको जब ट्रेडिशनल तरीके से करते हो तो आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं दिखती, बिकॉज आप वो फिर डिलेमा में रहते हो कि यार पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा. जब हम ये अप्रोच यूज करते हो तो अपने को साफ साफ यहाँ पे दिख जाता है. ठीक है. अगर ये यहाँ पे अपने को मिल गया तो मतलब युवराज के लिए बाकी चीजों को मैं अनटिक कर दूं. ठीक है. बाकी चीज़ों को अनटिक कर लेते हैं, यानी कि युवराज यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ तो ऑब्वियसली नहीं आ रहा है. ठीक है. सो पॉइंट नंबर 5 यूज़ करा, जिसकी वजह से अपने को ये मिल गया कि सौरव इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ फील्डिंग. द फॉर्मर प्लेयर हु इज एन एक्सपर्ट ऑफ कैप्टेंसी हैज नॉट सेटल्ड इन चंडीगढ़. जो ये कैप्टेंसी वाला बंदा है ये चंडीगढ़ में सेटल नहीं हुआ है. ठीक है. ये भी चंडीगढ़ में सेटल नहीं हुआ है, यानी कि चंडीगढ़ में ये 4 में से कोई एक सेटल हुआ होगा, ऐसा समझ पा रहा हूँ मैं. ठीक है. पॉइंट नंबर 6 नोटेड.
पॉइंट नंबर 7, द फॉर्मर प्लेयर हु हैज सेटल्ड इन कोलकाता पोस्ट हिज रिटायरमेंट इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ बैटिंग और स्पिन बॉलिंग। ऐसा प्लेयर जो कि कोलकाता में सेटल हुआ था, उसकी एक्सपर्टीज बैटिंग में भी नहीं है और स्पिन बॉलिंग में नहीं है, यानी कि कोलकाता बैटिंग में भी नहीं आने वाला और स्पिन बॉलिंग में भी नहीं आने वाला, यानी कि कोलकाता बचे हुए जो जगह हैं 1, 2 यहाँ और ये 3, यहाँ 3 में से कहीं जगह पे आ सकता है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 7 ऑल्सो नोटेड। पॉइंट नंबर 8, युवराज एंड सौरव हैव नॉट सेटल्ड इन गोवा और कोलकाता। युवराज और सौरव ऐसे हैं जो कि गोवा और कोलकाता में सेटल नहीं हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, यार कोलकाता में ये 2 बंदे भी नहीं हुए, कोलकाता में ये 2 बंदे भी नहीं, कोई तो कोलकाता में होना चाहिए, तो कौन होना चाहिए? आशीष हैज़ टू बी दैट पर्सन जो कि कोलकाता में सेटल हुआ होगा। ठीक है, ये अब आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि ऐसा था कि कोलकाता में कोई तो सेटल होना था, कोलकाता में ये दोनों नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, तो कोलकाता में कौन होगा? आशीष होना पड़ेगा, यानी कि आशीष के लिए कोलकाता मिल गया। ठीक है, हमने ये भी फिगर आउट कर लिया। अच्छा, अगर आशीष का कोलकाता है, यानी कि आशीष एक ऐसा बंदा होगा जो कि बैटिंग में भी एक्सपर्टीज़ नहीं होगी जिसकी, जिसकी स्पिन बॉलिंग में भी एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, क्योंकि अपने को क्या लिखा था पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 7 में अगर ध्यान दो, अभी पीछे हमने पॉइंट पढ़ा तो इसलिए मैंने इसको रीयूज़ कर लिया। द फॉर्मर प्लेयर हू हैज़ सेटल्ड इन कोलकाता, नाउ दैट आई नो कि दैट प्लेयर इज़ आशीष, उसकी एक्सपर्टीज़ ना ही बैटिंग में है, ना ही बैटिंग में है और ना ही उसकी एक्सपर्टीज़ स्पिन बॉलिंग में है। तो आशीष की एक्सपर्टीज़ किसमें बच सकती है? फ़ास्ट बॉलिंग में। तो आशीष के लिए मिल गया फ़ास्ट बॉलिंग, ठीक है? ये भी फिगर आउट हो गया, तो आशीष को हम फ़ास्ट बॉलिंग यहाँ पे दे देते हैं। सिंस आशीष के लिए फ़ास्ट बॉलिंग मिल गया, तो बाकियों के लिए फ़ास्ट बॉलिंग हटा दें, ठीक है? फ़ास्ट बॉलिंग बाकियों के लिए भी हट गया। सौरभ के लिए कैप्टेंसी मिल गया, क्योंकि सौरभ के लिए ये 3-4 यहाँ पे ब्लॉक है, तो सौरभ के लिए अपने को कैप्टेंसी यहाँ पे मिल गया। अब देखो कितना आसान बन गया सेट, जस्ट बिकॉज़ आपको ये सारी चीज़ें लूप में कनेक्टेड है, तो आप आराम से उसको देख पा रहे थे, ठीक है? यानी कि सौरभ के लिए ये भी गया और ये भी गया। सौरभ कौन है? एक ऐसा बंदा जो कि कैप्टेंसी में एक्सपर्टीज़ लेके बैठा है। ही इज़ नॉट फ्रॉम चंडीगढ़, ही इज़ नॉट फ्रॉम गोवा, ही इज़ नॉट फ्रॉम कोलकाता, ठीक है? ही हैज़ टू बी फ्रॉम रिमेनिंग 2 सिटीज़, ठीक है? वो शायद जो बची हुई 2 शहर हैं, वो कौन-सा हो सकता है? वो रिमेनिंग इज़ मुंबई या दिल्ली, कुछ ऐसा अपने को शायद मिलेगा। ठीक है, रुकते हैं, देखते हैं अभी और क्या मिल सकता है। बिकॉज़ अपने को यहाँ पे लिखा था फॉर्मर प्लेयर सॉरी युवराज एंड सौरव इज़ नॉट सेटल्ड इन गोवा और कोलकाता, तो वो गोवा कोलकाता नहीं होने वाला। अगर वो गोवा कोलकाता नहीं है, तो वो चंडीगढ़ भी नहीं है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। इट हैज़ टू बी द रिमेनिंग 2 सिटीज़, ऐसा अपने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा और पढ़ते हैं। सहवाग इज़ नॉट एन एक्सपर्ट ऑन स्पिन बॉलिंग। सहवाग जो है एक्सपर्ट नहीं है, किस चीज़ का? स्पिन बॉलिंग का। ठीक है। अगर सहवाग इज़ नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग, सहवाग इज़ नॉट एक्सपर्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग, यानी कि यहाँ पे स्पिन बॉलिंग हट गया। तो स्पिन बॉलिंग में कोई तो एक्सपर्ट होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी सचिन, और कोई तो अपने को मिल नहीं सकता। ठीक है। हमने यहाँ पे ये भी आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि इट हैज़ टू बी सचिन एंड फॉर सहवाग इट हैज़ टू बी बैटिंग, बिकॉज़ बाकी सारी चीज़ें हमने अनटिक कर ली थी। अब ये वाला पार्ट तो यार बड़ा आसानी से निकल गया अपना। मतलब हमने क्या करा, जैसा-जैसा स्टेटमेंट कह रहा था वैसा-वैसा ऑपरेट करते गए। अब इस जंक्चर पे अपने को क्या बचा है? हमने 5 में से 4 मतलब 5 के पाँचों का एक्सपर्टीज़ निकाल दी। नाउ वी आर लेफ्ट विद द सिटी वाला पार्ट कि उनकी सिटी क्या होगी, ठीक है? अब यहाँ पे तुम क्वेश्चंस के भी यूज़ ले सकते हो, बट हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि जितना हम निकाल सके वो हम एक्सपर्ट पूरा वाला चीज़ अपने को यहाँ पे फिगर आउट करनी चाहिए, ठीक है? चलो अ, सिटी के लिए देखते हैं। सिटी के लिए अपने को क्या पता है? अ, फील्डिंग वाला बंदा, यानी कि युवराज। युवराज कौन होने वाला है, ये देखते हैं। या युवराज के बारे में क्या पता था? युवराज गोवा का नहीं होगा, युवराज कोलकाता का नहीं होगा, ठीक है? यानी कि युवराज किसका हो सकता है? युवराज रिमेनिंग बचे हुए शहरों में से हो सकता है, ठीक है? एक बार हम सिटी वाले कॉन्टेक्स्ट को दोबारा पढ़ते हुए आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 से लेके 9 तक। देखते हैं कि कुछ अपने को एडेड इन्फॉर्मेशन और मिल सकती है एंड उसके बेसिस पे वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, बिकॉज़ अभी तक फॉर आशीष आई एम एबल टू क्लियरली डिटरमाइन दैट आशीष हैज़ टू बी फ्रॉम कोलकाता। चलो पॉइंट नंबर 1, द फॉर्मर प्लेयर हू इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग हैज़ नॉट सेटल्ड इन गोवा। अगर ये बंदा गोवा में नहीं हुआ, तो ये बंदा कोलकाता में नहीं में भी नहीं हुआ। तो ये बंदा या तो चंडीगढ़ होगा या तो रिमेनिंग जो शहर है उनमें से कुछ एक होना चाहिए। युवराज एंड सौरव आर नॉट एक्सपर्टीज़ ऑफ, ये पॉइंट हम यूज़ नहीं कर सकते। आशीष इज़ नॉट एन, ये भी यूज़ नहीं कर सकते। सचिन एंड सहवाग हैज़ नॉट सेटल्ड इन कोलकाता और चंडीगढ़। अच्छा, सचिन और सहवाग ऐसे हैं जो कि कोलकाता और चंडीगढ़ में सेटल नहीं करते हैं। ठीक है। अब अगर ये कोलकाता और चंडीगढ़ में नहीं करते हैं, तो यानी कि ये गोवा में कर सकते हैं। यार ये तो गोवा में भी नहीं कर सकता। अगर ध्यान दो तो फॉर सचिन, इट कैन नॉट बी गोवा ऑल्सो, बिकॉज़ सचिन का क्या है कि
कोलकाता नॉट पॉसिबल, चंडीगढ़ नॉट पॉसिबल, गोवा नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोवा यहाँ पे नहीं होता, तो इट हैज़ टू बी रिमेनिंग 2 सिटी यानी कि दिल्ली और मुंबई में से कोई एक। ठीक है, अब ध्यान करो तो पीछे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन भी पूछा होगा और किसके बारे में पूछा हुआ है? सौरभ के बारे में। तो यानी कि ये क्वेश्चन है जहाँ पे अपने को थोड़ा-सा हेल्प मिल रही है। सौरभ के लिए दिमाग लगाएँ क्या? सौरभ के लिए क्या हो सकता है? सौरभ के लिए चंडीगढ़ नहीं बन सकता, क्योंकि ये पता कि कैप्टन चंडीगढ़ का नहीं हो सकता। सौरभ के लिए कोलकाता नहीं हो सकता, तो गोवा भी नहीं हो सकता था, यानी सौरभ के लिए क्या बचा? मुंबई एंड दिल्ली। और यही चीज़ अपने को क्वेश्चन में पूछा भी है, अगर ध्यान दो तो। अच्छा, अपने पास सहवाग के लिए क्या कह सकते हैं? सहवाग के बारे में पता है, ही इज़ नॉट फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। बाकी कुछ हो सकता है क्या सहवाग किसी और का? या इसके लिए कर सकते हैं क्या, युवराज के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? युवराज इज़ नॉट फ्रॉम अ, स युवराज इज़ नॉट फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ का कौन हो सकता है अगर हम ये फिगर आउट कर पाएँ? चंडीगढ़ का सचिन नहीं हो सकता, सहवाग नहीं हो सकता। आशीष होगा नहीं, क्योंकि आशीष को कोलकाता का होना है। सौरभ हो नहीं सकता, तो यानी कि युवराज को ही चंडीगढ़ देना पड़ेगा, ठीक? ये पॉइंट फिर से समझा देता हूँ। चंडीगढ़ का कौन हो सकता था? ये दोनों हो नहीं सकते। आशीष को दे नहीं सकता, सौरभ होगा नहीं बिकॉज़ यहाँ पे साफ लिखा हुआ, तो इट हैज़ टू बी युवराज, ठीक है। अच्छा, चंडीगढ़ डन, गोवा की बात करें, ये गोवा का कौन हो सकता है? गोवा का ये दोनों नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई एक हो सकता था, सचिन और सहवाग में से। सचिन को दे नहीं सकते बिकॉज़ यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है स्पिन बॉलिंग वालों के लिए कि ये गोवा का नहीं होता। पॉइंट नंबर 1 में इनफैक्ट लिखा था कि जो स्पिन बॉलर है, ही इज़ नॉट फ्रॉम गोवा। तो गोवा का कौन होने वाला है? सहवाग हैज़ टू बी फ्रॉम गोवा एंड रिमेनिंग पार्ट अपना ये वाला पार्ट जो है वो ईदर और में रहने वाला है। ठीक है? सो दैट्स इट सॉल्यूशन वाले पार्ट में। लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट, देखते हैं क्या-क्या पूछा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है वो देखते हैं, देन उसके बेसिस पे आंसर देखते हैं कुछ अगर और मिल सकता है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है, द सिटी सेटल्ड इन पोस्ट टूर्नामेंट एज़ वेल एज़ देयर एक्सपर्टीज कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड फॉर हाउ मेनी ऑफ द 5 फॉर्मर प्लेयर्स। किसका-किसका कर पा रहे हैं? सहवाग का कर पा रहे हैं, ठीक है? आशीष का कर पा रहे हैं और युवराज का कर पा रहे हैं, यानी कि 3 लोगों का कर पा रहे हैं। तो आंसर क्या होने वाला है पहले का? इट हैज़ टू बी 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए, आशीष हैज़ सेटल्ड इन कोलकाता पोस्ट हिज रिटायरमेंट। आशीष कोलकाता, ठीक है, स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट। ओनली स्टेट आशीष इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग। आशीष फास्ट बॉलिंग है, बिल्कुल सही बात है। आशीष फास्ट बॉलिंग भी है और कोलकाता भी, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। हू हैज़ सेटल्ड इन गोवा? गोवा में कौन सेटल हुआ? इट हैज़ टू बी सहवाग, ठीक है, ये भी सही है, ये भी क्लियर कट क्वेश्चन था। इफ सौरभ हैज़ सेटल्ड इन मुंबई पोस्ट हिज रिटायरमेंट, अगर सौरभ मुंबई में गए, अगर सौरभ मुंबई में गए यानी कि ये यहाँ पे गए, तो यानी कि सचिन हैज़ टू बी फ्रॉम दिल्ली, सचिन पाजी का दिल्ली हो जाएगा। तो क्या पूछा हुआ है? इन दैट केस सचिन कहाँ पे सेटल होंगे? वो हो जाएँगे दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ डेफिनिटली करेक्ट? सहवाग कोलकाता बैटिंग, सहवाग बैटिंग भी न सहवाग का बैटिंग है बट कोलकाता नहीं है, ठीक है। युवराज चंडीगढ़ फील्डिंग, युवराज चंडीगढ़ भी है, फील्डिंग भी है, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी चेक कर लेते हैं। आशीष दिल्ली फास्ट बॉलिंग, आशीष फास्ट बॉलिंग है बट दिल्ली नहीं है। नन ऑफ द मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई वुड रेट इज एज अ मॉडरेट सेट। अगर आपने पहले ऐसा कुछ कर रखा है तो आप आराम से कर ले गए होगे, या तो आपके लिए लर्निंग के हिसाब से देखो तो दिस वुड बी अ न्यू थिंग फॉर यू, ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल्सो आई हैव शेयर्ड दिस सेट ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो तो आप कम्युनिटी वाले में जाके चेक कर सकते हो, और यू कैन राइट दिस थिंग इन दी पोस्ट कमेंट पार्ट, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से उस टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाओ ताकि आपको ये सेट 7:30 के अराउंड मिल जाया करे, एंड आप वो खुद से ट्राई करो, आपको 9:30 पे ये सॉल्यूशन डायरेक्ट मिला करे, ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।